Hello dear students, in today's lecture we are going to work out the different quantities of RCC column with foundation. Along with that we have to calculate the quantities of RCC also. So let's start today's session. So in today's lecture we are going to take one problem, that is prepare a detailed estimate of RCC column with foundation footing from the given drawing. So this is the drawing. By using this drawing we have to calculate the different quantities, that is earthwork in excavation in foundation. Second, cement concrete 1:4:8 at the bottom of the foundation. And third one, cement concrete 1:2:4 in foundation up to plinth level. So first of all we have to study this plan and section carefully so that it will be helped to solve the problem. So see here, so this is the ground level, this is the plinth level, so this is the trapezoidal footing section. So this is the PCC, and the PCC having dimension 2 meter by 2 meter. So it is the square footing. So see here in plan you can see 2 meter by 2 meter footing is provided here. So there is offset here. Again this dimension is 0.36 meter. So before calculating the quantities we should know each and every dimension on the drawing, so that it will be help to calculate the different quantities. So let's start solution of this problem. So I will write here serial number, particulars, nose, length, breadth,
height or depth, and last one quantity. So this length is in meter, breadth is in also meter, and height or depth it is also in meter. So first quantity, that is earthwork in excavation in foundation. Earthwork in excavation in फाउंडेशन. तो सबसे पहले हमें अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन को कैलकुलेट करना है, अर्थवर्क को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे सिंपली एक कॉलम ट्रेपेजोइडल फुटिंग का कॉलम दिया है, तो वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग का हमें अर्थवर्क फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हमारा एक ही कॉलम है, एक ही फुटिंग है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई विल राइट हियर 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही फुटिंग है तो नॉस कॉलम में अर्थवर्क एक ही रहेगा. आफ्टर दैट इन लेंथ कॉलम, सो सी हियर इन सेक्शन द डायमेंशन ऑफ फुटिंग, द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ फुटिंग इज 2 meter. So in plan we will get the dimension of footing, that is 2 meter by 2 meter, means in x direction 2 meter and in y direction 2 meter. So this quantity we have to calculate. So having dimension 2 meter by 2 meter. So in length column I will write 2 meter. So another dimension, that is breadth of footing, maximum breadth कितना है 2 meter, क्योंकि फुटिंग अपना 2 मीटर बाय 2 मीटर का है. तो यहाँ पे लेंथ में 2 मीटर लिखूंगा और ब्रेड्थ में भी 2 मीटर लिखूंगा, क्योंकि हमारा फुटिंग का जो मैक्सिमम डायमेंशन है 2 मीटर बाय 2 मीटर है. कभी कभी 2 मीटर बाय 2.5 मीटर भी हो सकता है, या 1.5 मीटर बाय 2 मीटर भी हो सकता है. तो उसके हिसाब से आपको लेंथ और ब्रेड्थ लेना होगा एक्सप्रेशन के लिए. नाउ in height or depth column, so see here in section, so this is the ground level, so this is the height that we have to excavate it. So calculate the height from the section. So see here, this is 0.2 meter plus 0.5 meter, 0.3 meter and 0.1 meter. So we have to add these dimensions, so we will get the depth of footing. So it will be 1.1 meter. After multiplication of this nose, length, breadth, height or depth, it will be 4.4 cubic meter. 4.4 cubic meter. So this is the quantity for the earthwork in excavation. Second quantity, that is concrete work 1:4:8 at the bottom of the foundation. So I will write here in serial number second, concrete work 1:4:8 at the bottom of foundation, at the bottom of foundation.
तो यहाँ पे ये हमारा पीसीसी है, तो ये हमारा कंक्रीट वर्क है एट द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन, दैट इज पीसीसी। तो इसका क्वांटिटी हमें निकालना है। तो यहाँ पे नॉस कॉलम में मैं 1 ही लिखूँगा क्योंकि हमारा एक ही कॉलम है। उसके बाद लेंथ में इसका लेंथ कितना है पीसीसी का 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में और 2 मीटर वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारा पीसीसी का डायमेंशन है। तो लेंथ को मैं 2 यहाँ पे लिखूँगा और ब्रेड्थ में 2 मीटर यहाँ पे लिखूँगा। सो सी इन द सेक्शन we will get the height or depth of the PCC from the section. See here, so this is the height or depth of the PCC, that is 0.1 meter. So I will write here 0.1 meter. So after multiplying these values, we will get the quantity of concrete work 0.4 cubic meter. So after that, third one, concrete work 1:2:4 in foundation up to plinth level. So I will write here concrete work 1:2:4 in foundation up to plinth level. कंक्रीट वर्क 1:2:4 इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन में जो पीसीसी का जो क्वांटिटी है हमने वर्कआउट किया है। अभी हमें कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल, तो यहाँ तक हमें सीमेंट कंक्रीट वर्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको 3 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। So this is the portion 1. After that, this is the trapezoidal portion, that is second part, and remaining this one up to plinth level. So this is the third part. So I will calculate the quantities for this different part. So it will be easy for calculating the concrete work in foundation up to plinth level. So first part, that is portion 1. So कितना नंबर्स होगा इनका? एक ही होगा क्योंकि हमारा फुटिंग कितना है, एक ही है। तो नॉस कॉलम में मैं 1 लिखता हूँ। उसके बाद पोर्शन 1 का लेंथ हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये पोर्शन 1 है, तो इसका ये लेंथ कंसिडर करूँगा मैं। तो यहाँ पे हमारी जो फुटिंग है वो ट्रैपेजोइडल फुटिंग है, और वो ट्रैपेजोइडल फुटिंग हमारी स्क्वायर ट्रैपेजोइडल फुटिंग है। मतलब 2x2 मीटर का जो फाउंडेशन है, तो यहाँ पे जो अभी पार्ट 1 का पोर्शन है तो वो भी हमारा स्क्वायर में ही रहेगा। इतना जो डायमेंशन है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डायमेंशन होगा एक्स डायरेक्शन में, उतना ही वाई डायरेक्शन में इसका डायमेंशन रहेगा। मतलब ये स्क्वायर ट्रैपेजोइडल फुटिंग है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, ये डायमेंशन हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 मीटर है, पर यहाँ पे 0.2 का ऑफसेट दिया है ये साइड पे, और ये साइड में भी 0.2 का ऑफसेट रहेगा। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा फिर, 2 मीटर माइनस 0.2 माइनस
0.2. So we will get this distance. So it will be 1.6 meter from this point to this point, 1.6 मीटर. तो यहाँ पे लेंथ में पोर्शन 1 का डायमेंशन लिखता हूँ 1.6 मीटर. सिमिलरली ब्रेड्थ में भी अभी हमारी ट्रेपेजोइडल फुटिंग होने की वजह से इस पोर्शन का सेकेंड डायरेक्शन का जो डायमेंशन है वो सेम ही रहेगा. तो मैं ब्रेड्थ में भी 1.6 मीटर लिखता हूँ. अभी कभी कभी अगर आपकी स्क्वायर ट्रेपेजोइडल फुटिंग नहीं है तो वो केस में आपका लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ पे स्क्वायर ट्रेपेजोइडल फुटिंग होने की वजह से लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है. उसके बाद इस पोर्शन का हाइट कितना है 0.3 मीटर. सो आई विल राइट हियर 0.3 मीटर. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इनका क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज 0.768 क्यूबिक मीटर. Now for portion 2, so नॉज में इसका क्वांटिटी 1 ही आएगा. तो ये पोर्शन 2 जो है हमारा ट्रेपेजोइडल पोर्शन है. ठीक है, पहला स्क्वायर पोर्शन है, ये ट्रेपेजोइडल पोर्शन है, और तीसरा वाला जो है हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है. तो हमें इस सेकेंड पार्ट का क्वांटिटी फाइंड आउट करना है ट्रेपेजोइडल पोर्शन के लिए. तो यहाँ पे देखिए ट्रेपेजोइडल पोर्शन में ये बॉटम पोर्शन है ट्रेपेजोइडल का और ये टॉप पोर्शन है. तो इसका कितना डायमेंशन है, तो इसका डायमेंशन है 1.6 मीटर. ये x डायरेक्शन में, वैसे ही y डायरेक्शन में 1.6 मीटर रहेगा. सिमिलरली अभी ये टॉप पोर्शन देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.36 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऑफसेट दिया है तो वो 0.15 मीटर का है. यहाँ पे भी 0.15 मीटर ही रहेगा ये ऑफसेट. मतलब इनका एडिशन करने के बाद हमें इसका एक डायमेंशन मिल जाएगा, दैट इज 0.66 मीटर. x डायरेक्शन में 0.66 मीटर है, वैसे ही y डायरेक्शन में भी 0.66 मीटर ही रहेगा. तो हमें यहाँ पे ट्रेपेजोइडल पोर्शन का हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना है. अगर आपको ट्रेपेजोइडल पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल इज इक्वल टू h/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 इंटू AM. तो A1, A2 और AM क्या है, तो A1 मतलब एरिया ऑफ बॉटम पोर्शन. तो हमने यहाँ पे देखिए ये बॉटम पोर्शन है और ये टॉप पोर्शन है. तो एरिया A1 मतलब क्या है, एरिया ऑफ बॉटम पोर्शन. सिमिलरली A2 मतलब एरिया ऑफ टॉप पोर्शन, एरिया ऑफ टॉप पोर्शन. और AM मतलब क्या है, A1 और A2 का मीन. मतलब A1 और A2 का हमें यहाँ पे एवरेज लेना है, तो उसको AM यहाँ पे कहते हैं. तो सबसे पहले हम A1, A2 और AM निकालते हैं.
सो A1 इज इक्वल टू, A1 क्या है हमारा, एरिया ऑफ बॉटम पोर्शन ऑफ ट्रेपेजोडल। तो ट्रेपेजोडल का बॉटम क्या है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर बाय 1.6 मीटर। तो यहाँ पे बॉटम का एरिया कितना आएगा, 1.6 बाय 1.6 मीटर इज इक्वल टू 2.56 मीटर स्क्वायर। तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर में रहेगा। आफ्टर दैट A2 मतलब क्या है, एरिया ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ ट्रेपेजोडल। तो टॉप पोर्शन के डायमेंशन क्या है, 0.66 x डायरेक्शन में, सिमिलरली 0.66 y डायरेक्शन में। सो आई विल राइट हियर 0.66 बाय 0.66 इज इक्वल टू, तो इनका एरिया आता है 0.44 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अभी हमें मीन निकालना है A1 और A2 का। तो A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2.56 प्लस 0.44 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 1.50 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये हमारा मीन एरिया है। आफ्टर दैट इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। सो इज इक्वल टू एच मतलब क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपेजोडल। तो ये ट्रेपेजोडल है तो उसका हाइट कितना है, 0.5 मीटर। सो 0.5 डिवाइड बाय 6 इंटू इन ब्रैकेट A1 कितना है, 2.56 प्लस A2 0.44 प्लस 4 इंटू AM, 4 इंटू AM कितना है, 1.5 मीटर। So after calculating this, we will get 0.75 क्यूबिक मीटर। तो ये वॉल्यूम हमें ट्रेपेजोडल पोर्शन का मिल जाएगा। So I will write here quantity 0.75 cubic meter. Now portion 3, तो उसका नॉज में नंबर 1 ही आएगा। ये हमारा थर्ड पोर्शन है तो इसका क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं लेंथ कंसिडर करूँगा और जो दूसरा डायमेंशन है ये x डायरेक्शन में 0.36 मीटर है, वैसे ही y डायरेक्शन में 0.36 रहेगा। मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और ये जो है उसका डेप्थ है। सो इन लेंथ आई विल राइट 0.36, सिमिलरली इन ब्रेड्थ I will write 0.36 meter. In third column, that is height or depth, we have to take the height or depth of this portion. तो इस पोर्शन की डेप्थ कितनी है, तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेवल तक 0.4 मीटर प्लस 0.2 मीटर, 0.4 plus 0.2 meter, so it will be 0.6 मीटर। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें थर्ड पोर्शन का क्वांटिटी मिल जाएगा, दैट इज 0.078 क्यूबिक मीटर। So in this way we can
calculate the different quantities of RCC trapezoidal footing.